So today is Mother's Day. तो आज का दिन माओ का दिन है। Proverbs 31 verse 30. Good News Bible. नीति वचन 31 में 30 गुड न्यूज बाइबल। Charm is deceptive. शोभा धोखादायक है। Yeah. Beauty will disappear. सुंदरता ओझल हो जाएगी। But लेकिन a woman who honors the Lord shall be praised. जो स्त्री परमेश्वर का आदर करती है उसकी स्तुति की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। So all the mothers तो सारी माओ in the Lord, प्रभु में you are worthy to be praised. आप प्रशंसा के योग्य हो। Actually, you are born because your mother decided to keep you in her womb for 9 months. हकीकत में आपका जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी माँ ने निर्णय लिया आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखने का। Many abort their children. बहुत सारे लोग अपने बच्चों का गर्भपात कर देते हैं। But you saw the light, you grew up. लेकिन आपने जीवन देखा, आप बड़े हुए। It's because she feared God. ये इसलिए क्योंकि उसने प्रभु का भय माना। Yeah. She honored God. उसने प्रभु का आदर किया। Give her credit for all she does. जो भी वो करती उसके लिए उसे सराहना दो। Yeah. Give her credit उसके लिए उसे सराहना दो। for all that she does. जो भी वो करती है उसके लिए सराहो उसे। And she deserves the respect of everyone. और हर एक की ओर से वो सम्मान के पात्र रखती है। She deserves respect. वो सम्मान की पात्रता रखती है। And this house is a house where honor is very important. ये ऐसा घर है जहाँ पर आदर बहुत महत्व का है। Because we pray the kingdom culture will become a part of this house. क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं राज्य की जो संस्कृति है इस घर का भाग बन जाए। Yeah. And all mothers, you are celebrated in heaven. और सारी माओ आपका स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। Because you are a vessel which brings life. क्योंकि आप ऐसे बर्तन हो जो जीवन लाता है। Yeah. And thank you और धन्यवाद आपका for giving us life. हमें जीवन देने के लिए। Mom. माँ Not perfect, सिद्ध नहीं है but a very beautiful person लेकिन बहुत सुंदर व्यक्ति है which God gives in our lives. जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। Okay. So I picked up 4 things about your mom. तो आपकी माँ के बारे में मैंने 4 चीजें उठाई है। Yeah, maybe it may be there in your mom's life. शायद आपके मम्मी के जीवन में ये होगा, It may not be there. शायद नहीं होगा। And even if it is not there, we still love her. यदि नहीं होगा फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। I think you could have said a bigger amen. आपने बड़ा आमीन कहना चाहिए था। Number 1, पहला, mothers are normally very sacrificial. माँ जो होते हैं आमतौर पर बहुत बलिदान कारक होते हैं। That means they pay a price. इसका मतलब वो कीमत चुकाते हैं। Yeah, they pay a price. वो कीमत चुकाते हैं। And children enjoy because they pay the price. और बच्चे आनंद लेते हैं क्योंकि माँ ने कीमत चुकाई है। Yeah. And I've been blessed by an amazing woman in my life which is called mom. और मैं बहुत आशीषित हुआ एक अद्भुत स्त्री के द्वारा मेरे जीवन में जिसे माँ कहते हैं। Yeah, and she has sacrificed a lot. और उसने बहुत बलिदान किया है। Yeah, a lot. बहुत। So I'll show you. There can be a mother which can be very sacrificial, ऐसे माँ हो सकते हैं जो बहुत बलिदान कारक है। or there can also be a mother who is. There can also be a mother who is selfish. या फिर ऐसे माँ भी हो सकते हैं जो बहुत स्वार्थी है। But if she is selfish, still no problem. लेकिन यदि वो स्वार्थी है फिर भी कोई बात नहीं। Because now you know somebody who has given you a lot of love, right? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को अभी जानते हो जिसने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। Yeah. And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Yeah. So there's a small story. तो एक छोटी कहानी है। You all know about Solomon, right? हम सब सुलेमान के बारे में जानते हैं। One सही है day ना? 2 women came to him. एक दिन 2 स्त्रियां उसके पास आई। Both are mothers. दोनों माँ है But there was a small problem. लेकिन एक छोटी समस्या थी। Both lived in a house. दोनों एक घर में रही। Both had small little children. दोनों के छोटे बच्चे थे। In the night both were sleeping. रात में दोनों सो रहे थे। So one of the mothers, she rolled over her child. तो एक माँ जो है अपने बच्चे के ऊपर से पलटी मारी। Yeah. And because of that rolling, that child was choked to death. और वो पलटी मारने के कारण वो बच्चा दब के मर गया। So the mother said, "Oh, my child has died." तो माँ ने कहा मेरा बच्चा तो मर गया है। So what she did is she replaced the dead child with the living child. तो उसने क्या किया, वो मरे बच्चे को बदल के जिंदे बच्चे खुद ले लिया। The mother who was sleeping of the living child, जो जीवित बच्चे की माँ सो रही थी, in the night she got up रात में उठी and she realized और उसको एहसास हुआ something is wrong somewhere. कुछ तो गलत हुआ है कुछ। She looked very closely to her
child उसने बहुत करीबी से बच्चे को देखा and she realized this is not my child. और उसे एहसास हुआ ये मेरा बच्चा नहीं So है। they began to have a fight, a struggle. तो लड़ाई करने लगे, संघर्ष होने लगा And they brought this case to King Solomon. और ये शिकायत राजा सुलेमान के पास वो लेकर आए। So Solomon said, no problem. राजा सुलेमान ने कहा कोई समस्या He नहीं। said, bring a sword उसने कहा तलवार लाओ and cut this child into 2 pieces. और इस बच्चे को 2 भाग में काट दो, Give 1 piece to each of the mother. दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे दो, Let them be satisfied. उन्हें संतुष्ट हो जाने दो। Now I want you to hear me. अभी मैं चाहता हूँ आप मुझे सुनना। First King chapter 3 verse 26. पहला राजा 3 में 26। Yeah, First King chapter 3 verse 26. पहला राजा 3 में When 26। the real mother, फिर जो हकीकत में उसकी माँ थी, oh, her heart was full of love for her son. उसका हृदय पूरी तरह अपने बेटे के लिए भर गया प्रेम से। Oh, blessed are those who have received love from their mothers. धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने माँओं से प्रेम पाया है। And blessed are also those who have not received love from your mothers, but don't worry, you have a God who is like a mother to you. और वो लोग भी धन्य है जिन्होंने अपने माँ से प्रेम नहीं पाया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। So what did this mother said? तो इस माँ ने क्या कहा? Because of love, प्रेम के कारण she said, उसने कहा King, राजा don't kill the child. बच्चे को मारो मत, Give it to her. उसे दे दो। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनना मुझे। You know, mother's journey is a sacrificial journey. माँ की यात्रा बलिदान से भरी यात्रा होती तो आमीन नहीं बोल रहा है. Some of you right now, you don't talk to your mother. है। आप में से कुछ लोग इस वक्त अपनी माँ से बात नहीं करते हो। Some of you right now, you despise your mother. आप में से कुछ लोग इस वक्त अपनी माँ को तुच्छ समझते हो। Some of you right now, you feel your mother is of no use to you. आप में से कुछ लोग इस वक्त सोचते हो आपकी माँ का आपके जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ your mother has journeyed with you. आपकी माँ ने आपके साथ यात्रा की है। तो आमीन नहीं बोल रहा है. Can I say something? मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? When you get married, you choose your lifetime partner. जब आप शादी करते हो तो आपका जीवन साथी को आप चुनते हो, But when God gave you to your mother, लेकिन जब प्रभु ने आपको आपकी माँ को दिया, God did not give her the choice. प्रभु ने उन्हें चुनाव नहीं दिया था। God chose that she will be your mother. You better start honoring, respecting her in Jesus' mighty name. प्रभु ने चुनाव किया था कि वो तुम्हारी माँ होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें आदर सम्मान देना शुरू कर दो। Yeah. Some of you, after you get married, you despise your mother. आप में से कुछ लोग शादी करने के बाद अपने माँ को तुच्छ समझते हो। Yeah. You have no revelation of marriage. शादी का कोई प्रकाशन नहीं है आपके पास। Don't be a fool. मूर्ख मत बनो। I don't know your mom. She may be a sacrificial woman or a selfish woman. But whatever is the case, मुझे नहीं पता आपकी मम्मी बलिदान कारक मम्मी है या फिर स्वार्थी मम्मी, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे भी केस क्यों ना हो। we are called to honor them in Jesus' हमें name. कहा गया उनका आदर करने के लिए यीशु के नाम में। Come on, I think you should give the Lord a big hand. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाने से। But the other woman said, लेकिन दूसरी स्त्री ने कहा don't give it to any of us. हम में से किसी को भी मत दो, Cut the child. बच्चे को काट दो। Selfishness. स्वार्थीपन, Living for self. खुद के लिए जीना। What did I see in this mother? इस माँ में मैं क्या देखता हूँ? I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा। Amen. I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा। Jesus said, I'll die for you यीशु ने कहा मैं तेरे लिए so मरूंगा that you will live. ताकि तू जिए। Even your mothers, आपकी माँ भी many times, बहुत बार they have said, वो उन्होंने कहा है I will pay the price मैं कीमत चुकाऊंगी so that you will live. ताकि तू जिए। You will live. तू जिए। Number 2. दूसरा नंबर से जाऊंगा I मैं। just want to tell all the mothers. मैं सारी माँओं से कहना चाहता हूँ Yeah, you know, point your finger towards the Lord who has done the biggest sacrifice. अपनी उंगली प्रभु की ओर लगाओ जिसने सबसे बड़ा बलिदान किया है। All the mothers should point their finger to the Lord सारी माँओं ने अपनी उंगली को प्रभु की ओर लगाना है and tell their child, और उनके बच्चों से कहना है this one is the one who makes the biggest sacrifice in the whole. ये है जो जिसने पूरे संसार भर में सबसे बड़ा बलिदान किया है। Follow Jesus. तो यीशु का पीछा करो। Can I hear an amen? आमीन। Now mothers, some of you sacrifice, I know, अभी कुछ माँ मैं जानता हूँ आप बलिदान करते हो, but I want to encourage you. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ Don't sacrifice your relationship for anything. किसी भी बात के लिए अपने रिश्ते को बलिदान मत कर दो। अपने प्रभु के साथ जो रिश्ता है ना, उसको कभी बलिदान पर चढ़ाओ मत, यीशु मसीहा के नाम। आमीन। Number 2. दूसरा Yeah.
Mothers are very courageous. माँ बहुत हिम्मत वाली होती है। No, amen. Sometimes your mothers are like bold, like lion. कभी कभी आपकी माँ जो है ना सिंह के समान बहादुर होती है। She may be very fearful, but suddenly, hello, something is wrong. शायद वो भयभीत हो सकती है, लेकिन अचानक से She gets this courage. वो जो है उसे वो साहस मिल जाता है, Courage. साहस मिल जाता है। And many of you are alive because your mother has been very courageous in the midst of every challenges in life. Your mother said, no problem, we will go ahead in Jesus' name. आप में से बहुत लोग आज जिंदा है इसलिए क्योंकि आपकी माँ सारी चुनौतियों में भी साहसी रहे। उसने कहा कोई समस्या नहीं, हम आगे जरूर जाएंगे। Yeah. Can I hear an amen? Amen. I have a beautiful verse. मेरे पास सुंदर वचन है, Proverbs 28 verse 1. नीति वचन 28 में 1। But the godly, लेकिन जो दैवीय लोग होते हैं, godly mothers, दैवीय माँ, they are bold like a lion. वो सिंह के समान बहादुर होते हैं। You know, when you were a small little child, जब आप छोटे बच्चे थे, when challenges came, जब चुनौतियाँ आई, you were hiding behind your mother आप आपके माँ के पीछे छुप रहे थे and your mother was ahead. और आपकी माँ आगे खड़ी थी। She took the storms of life. उसने जीवन के आंधी तूफान को ले लिया, She took the challenges of life. उसने जीवन की चुनौतियों को लिया। She said, we will go ahead. उसने कहा हम आगे जाएंगे। Celebrate her. उनका जश्न मनाओ। Maybe now she is old. शायद अभी उनका उम्र बड़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, There are wrinkles on her face. शायद उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, But you forgot लेकिन आप भूल गए that she is the one who conceived you. कि वही है जिसने आपको गर्भ धारण करके जन्म दिया है। 9 months she carried you. 9 महीने आपको लेकर चली And the first person to say, I love you is your mother. और पहला व्यक्ति जिसने तुझसे कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ तेरी माँ है। Yeah, and the first person to hug you is your mother. और पहला व्यक्ति जिसने तुझे गले लगाया वो तेरी माँ है। I am not saying that when you see mistakes in your mother, you don't tell her, but how you tell her is very important. मैं ऐसा नहीं कह रहा आपकी माँ में जब कुछ गलतियां आप देख रहे हो तो उनको कहो मत, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कैसे आप कह रहे हो वो बहुत महत्व का है। Yeah, can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता Now, हूँ? in the Bible there's a godly woman. बाइबल में दैवीय स्त्री है, Yeah, her name is Jochebed. उसका नाम है योकेबेद। She is the mother of Moses. वो मूसा की माँ है। How many of you love Moses? कितने लोग मूसा से प्यार करते हैं? How many of you know 10 commandments? कितने लोग 10 आज्ञाएं जानते हैं? Yeah, how many of you have seen the movie? कितने लोगों ने मूवी देखी है? You're all blessed by this man, right? हम सब इस व्यक्ति के द्वारा आशीषित हुए। But there is one mother लेकिन एक माँ थी who looked at the storm of life जिसने जीवन के आंधी तूफान की ओर देखा and she said, और उसने कहा I will fight this storm. मैं इस आंधी तूफान से लड़ूंगी, I will go through the storm. मैं इस आंधी तूफान से गुजरूंगी, I will protect my child. मैं मेरे बच्चे को सुरक्षित रखूंगी And I will go ahead in Jesus' mighty name. और मैं आगे जाऊंगी यीशु के महान नाम में। I think some of you should sit with your mothers and ask stories. They'll tell you. मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने अपने माओ के साथ बैठकर कहानियां पूछनी चाहिए, वो बताएंगे आपको Yeah. कहानियां How they took you through the storms of life. कैसे जीवन के आंधी तूफानों से उन्होंने आपको पार लेकर आया है। Yeah. Now some of you are 30. अभी आप में से कुछ लोग 30 साल के हो So you have a lot of muscle. तो आपके बहुत सारे मसल्स हैं And थोड़ा सा इधर तुम्हारे मेंदू में थोड़ा सा भेजा आया है. So you think you are very smart. तो आपको ऐसा लगता है आप बहुत होशियार हो। Can I tell you? मैं आपको कुछ कहूँ, You may be smart. शायद आप होशियार हो सकते हो, You may be strong. शायद आप मजबूत हो सकते हो, But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता it's हूँ your mom आपकी माँ ही है who saw the storms which were there in your life. जिसने वो आंधी तूफान देखे जो तुम्हारे जीवन में थे। She said, no problem. उसने कहा कोई समस्या नहीं, We will handle this storm in Jesus' name. हम इस आंधी तूफान को संभाल लेंगे यीशु के महान नाम में। Okay, now let me tell you about his mother. अब इसकी माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। There's a big problem. बड़ी समस्या थी। You know what is the problem? पता है समस्या क्या थी? Moses is growing up, not growing up, the family is growing up in Egypt. परिवार मिस्र में बढ़ रहा था And there was a decree passed by the king. और राजा के द्वारा एक बात की घोषणा की गई, Every male child born to a Jewish family, that child should be thrown into the river. हर एक जो यहूदी बच्चा जो है लड़का जो होगा वो नदी में डाल दिया जाएगा। Yeah, it should be thrown. उसे डाल दिया जाएगा। So God blessed them with a beautiful baby. तो परमेश्वर ने सुंदर बच्चे के द्वारा आशीषित किया। So what did she do? तो उसने क्या किया? She was courageous. वो साहसी थी। She said, no, उसने कहा नहीं, I will protect this child. मैं इस बच्चे की सुरक्षा करूंगी। 3 months she kept the child. 3 महीने उसने बच्चे को रखा।
And then she released the child. फिर उसने बच्चे को आजाद किया। Let me show you that scripture. वो वचन आपको दिखाता हूँ। Hebrews chapter 11 verse 23. इब्रानियों 11 में 23। Now something beautiful about this mother. इस माँ के बारे में कुछ सुंदर बात है। Yeah, she believed in God. उसने प्रभु में भरोसा किया। Is there any mother who believes in the Lord over here? क्या कोई ऐसी माँ यहाँ पर है जो प्रभु में भरोसा करती है? Lift your hand and say hallelujah. अपने हाथों को उठाइए और हालेलुया कहिए। Yeah. Moses' parents believed God. मूसा के माता पिता ने प्रभु में भरोसा किया। When Moses was born, जब मूसा का जन्म हुआ, they hid him for 3 months. 3 महीनों तक उसे छुपाए रखा। Okay, that needs courage. उसके लिए हिम्मत लगती है। King is saying, राजा कह रहा है, you should throw the child in the river. तूने बच्चे को नदी में डाल देना। Mother is saying, माँ कह रही है, no chance. कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। No chance. ऐसा कुछ नहीं होने वाला। No chance. ऐसा कुछ नहीं होने वाला। I am going to protect my child. मैं मेरे बच्चे की सुरक्षा करने वाली हूँ। But she did it out of a relationship with God. लेकिन उसने किया ये परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के द्वारा। She took a risk. उसने जोखिम उठाई। She took a risk for her family. उसने अपने परिवार के लिए जोखिम उठाई। But for whom? लेकिन किसके लिए? Small child. छोटे बच्चे के लिए। What's his name? उसका नाम क्या है? Moses. मूसा। Today who's Moses? आज मूसा कौन है? Celebrity through the whole world. पूरे संसार भर में मशहूर है वो। Everybody knows about him. सब लोग उसके बारे में जानते हैं। But what was his beginning? लेकिन उसकी शुरुआत क्या थी? It was his mother. उसकी माँ थी। Same way. उसी प्रकार You may become famous. शायद आप मशहूर हो सकते You हो, may become great. शायद आप महान हो सकते हो, But I want you to remember, लेकिन मैं चाहता हूँ आप याद रखना, maybe your mother has been very courageous in her time of challenges. शायद आपकी माँ बहुत बहादुर रही है उसकी चुनौतियों के समय में। Now, when challenges come, जब चुनौती आती है there is fear तो डर होता है and there is anxiety. और चिंताएं होती है। But I believe this mother लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये माँ, must have taken all her fears and anxiety to the Lord. उसने शायद अपने सारे डर और चिंताओं को प्रभु के पास ले गई होगी। All the mothers, सारी माँ, will there be challenges? क्या चुनौतियां आएंगी? Yes. हाँ आएंगी, But rise up लेकिन उठ खड़ी हो जाओ like a bold lion. साहसी सिंह के समान। Bring your fears to God. अपने डर प्रभु के पास लाओ, Bring your anxiety to God. अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लाओ God will give you His peace. और प्रभु आपको उनकी शांति देंगे। Yes. Okay, let me give you a verse. एक वचन देता हूं आपको, Philippians chapter 4 verse 6. फिलिपियों 4 अध्याय वचन 6। All the mothers सारी माओ who are going through challenges. जो चुनौती से गुजर रहे हैं, Yeah, maybe there's fear, शायद डर हो सकता है, maybe there is anxiety. शायद उसमें चिंता है। Okay, listen. सुनिए, Do not worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो, Don't worry. चिंता मत करो। Don't worry about your 2 children. आपके 2 बच्चों के बारे में चिंता मत करो। Pray to God about everything. हर एक बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। That's why I say, please keep praying. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रार्थना करते रहो। This month is a month of extended prayer. ये महीना ऐसा महीना है जहाँ पर निरंतर लगातार प्रार्थना, बढ़ाई हुई प्रार्थना का समय है। जो 5 मिनट करते हैं वो लोगों ने 10 मिनट करना है। Amen. जो 10 मिनट करते हैं वो लोगों ने 20 मिनट करना है। जो 20 मिनट करते हैं 40 मिनट करना है। Extend your prayer time. Something beautiful will happen in your family. अपना प्रार्थना का समय आगे बढ़ाओ, आपके परिवार में कुछ सुंदर जरूर होगा। Ask God to help you प्रभु से कहो कि आपकी मदद करे and thank Him for His help. और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद कहो। Amen. Are you worried, mother? क्या आप चिंता करने वाली माँ Don't हो? worry. Come. चिंता मत करो, आ जाओ। Come. Let's go to the Lord. आओ प्रभु के पास जाते हैं। Let's talk to the Lord. आइए प्रभु से बात करते हैं। Talk to the Lord. प्रभु से बात करते A हैं। mother who talks to God is a very dangerous mother. By the way. जो माँ प्रभु से बात करती है ना, बहुत खतरनाक माँ होती है। Demons tremble. दुष्ट आत्माएं थरथराती है। My mother, मेरी माँ 10th pass, 10वीं पास, Tamil woman, तमिल बोलने वाली स्त्री, staying in Nasik Road. नासिक रोड में रहती थी। People talk in Marathi, she doesn't understand. लोग मराठी में बात करते थे, उनको समझ में नहीं आता था। Half the time she is confused. ज्यादातर समय वो गड़बड़ी में रहती थी। But one thing she knew, लेकिन एक बात वो जानती थी, let me take everything to Jesus. मुझे सब बातें यीशु के पास लेके जाना है। Mothers, माओ, you don't know anything now, no problem. आपको कुछ नहीं पता ना तो भी कोई समस्या नहीं। Let's go to a person who knows everything. आइए उस व्यक्ति के पास जाएं जो सब कुछ जानता है। आमेन बैठ गया, तुम्हारा आमेन बैठ रहा है।
Okay, next verse. अगला Verse 7. Verse वचन 7. 7, If you do that, यदि तुम ऐसा करोगे, that means pray. इसका अर्थ प्रार्थना करोगे, Thank God. प्रभु को धन्यवाद You know दोगे, what's going to happen? पता है क्या होगा? God will give you peace in your mind. प्रभु आपके मनों में शांति देंगे, You will not worry. तुम चिंता नहीं करोगे। When you worry, na, I know you have not prayed. जब आप चिंता करते हो ना, तो मुझे पता चलता है कि आपने प्रार्थना नहीं की उसके बारे में। Hello, when you worry, it's a sign you have not prayed. ये चिंता जो है चिन्ह है कि आपने प्रार्थना नहीं की है। But if you pray, लेकिन यदि आप प्रार्थना करोगे, God will give you peace. प्रभु आपको शांति देंगे। And then it says, फिर आगे कहता है, you will not be afraid. तुम डरोगे नहीं। Where did Moses' mother get this courage? मूसा की माँ को ये साहस कहाँ से मिला? From God. प्रभु से। How did she get it? उसे कैसे मिला? Prayer. प्रार्थना के द्वारा। How did she get it? उसे कैसे मिला? Thanksgiving. धन्यवाद देने के द्वारा। She's ready. वो तैयार है। अरे बाबा, जब राजा बोलता है और तुम तुम्हारे बच्चे को छुपा के रखते हो, अगर उसको पता चल जाए पूरा घर को खाली कर देगा, पूरा फाड़ देगा वो। But for her to have a courage over there, लेकिन उसके लिए वहां पर साहस रखने के लिए amazing. बहुत अद्भुत था। Can I hear a big amen? आमीन। Let me tell you, मुझे आपसे कहने दो, praying person प्रार्थना करने वाला व्यक्ति will overcome fear. डर के ऊपर विजय पाएगा। Praying person प्रार्थना करने वाला will व्यक्ति overcome worry. चिंताओं के ऊपर विजय पाएगा। And all God's people say, सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमीन। Number 3. तीसरा, Mothers sometimes are weak. Not sometimes, they are weak. माँ जो है कमजोर होते हैं। Nobody is saying amen. कोई आमीन नहीं कह रहा। You know, children want their mothers to be perfect. आपको पता है बच्चे चाहते हैं कि उनकी माँ बहुत सिद्ध रहे। How many of you sitting over here will be very excited to introduce your mother to your friends? आप में से कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, आप आपका माँ का परिचय अपने दोस्तों के सामने करने के लिए आप बहुत उत्साहित रहोगे? Put your hand up. अपना हाथ Wow. उठाइए। But some of you, लेकिन आप में से कुछ लोग, you're not confident about your mom. आप आपके माँ के विषय आत्मविश्वास से भरे नहीं हो। You want a perfect mom. आपको सिद्ध माँ चाहिए। You'll never get a perfect mom. आपको कभी भी सिद्ध माँ नहीं मिलेगी। You'll get an amazing mom, आपको अद्भुत माँ मिलेगी, but not a perfect mother. लेकिन सिद्ध माँ नहीं मिलेगी। Oh, I think you should have said an amen over there. मुझे ऐसा लगता है आपने आमीन कहना चाहिए था। Okay. So my mother, तो मेरी माँ, I think maybe for 20 years she struggled with mental sickness. शायद 20 साल वो मानसिक बीमारी से संघर्ष करती रही। Are you with me? आप मेरे साथ हो? And some of your mothers are also like that. और कुछ लोगों की माँ भी वैसे ही है, Because when I look at your mother, I know. क्योंकि जब मैं आपकी माँ को देखता हूँ तो मैं जान जाता हूँ। But लेकिन you demand perfection from your mother. आप आपकी माँ से मांग रखते हो सिद्धता की। It will not happen. नहीं होगा ये, It will not happen. ऐसा नहीं होगा, It will not happen. नहीं होगा। My mother's big problem, मेरी माँ की बड़ी समस्या is fear. वो डर था। Have you ever sat with your mom, check, क्या कभी आप आपकी माँ के साथ बैठे हो and asked her, what are your fears? और उनसे पूछा है क्या आपके डर क्या है? You know, at the most what you do, take her to the doctor and get her some medicine ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास लेके जाते हो उन्हें और कुछ दवाइयाँ लेकर आते हो and make her take medicine. और उनको दवाई लेने लगाते हो। And we are people like this. We want our life not to be disturbed. और हम ऐसे We are very selfish. हम ऐसे लोग हैं जहाँ पर हम चाहते हैं हमारे जीवन को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हम बहुत स्वार्थी लोग हैं। We are very yeah. For years I did not understand my mom. सालों तक मेरी माँ को मैं समझ नहीं पाया, I never understood. मैंने नहीं समझा, I just did not understand. मैंने समझा नहीं। I was a young boy, मैं जवान लड़का था, very talented. बहुत गुणवंत, Yeah, and I knew I can just do something. और मैं जानता था मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, And I was expecting the same from my mom. और मेरी माँ से भी वैसे मैं अपेक्षा भी रख रहा था। Yeah, but my mom was different. लेकिन मेरी माँ अलग थी, अलग थी वो। One day, my father was in the hospital एक दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे because of something. कुछ चीज की वजह से, So my mom could not take the pressure. तो मेरी माँ जो है वो दबाव झेल नहीं पा रही थी। So I don't know what she was saying, what she was doing. मुझे नहीं पता वो क्या कह रही थी, क्या कर रही थी।
So I told my dad, this is what is happening. तो मैंने अपने पिताजी से कहा ये सब हो रहा है। He said, go to this doctor. तो उन्होंने कहा इस डॉक्टर के पास जाओ। So I took her. तो मैं उन्हें लेकर गया And the doctor told me, we have to give her shock. और डॉक्टर ने कहा हमें उनको शॉक देना पड़ेगा। I never understood what is this shock and for what they give shock, and I never understood. मुझे समझ में नहीं आया शॉक देना क्या होता है और क्यों देते हैं, समझा नहीं मुझे। Because we are so lost in our life, na? क्योंकि हमारे जीवन में हम इतने खो गए ना That we don't take time to understand our mother. कि हम समय भी नहीं निकालते हमारी माँ को समझने के लिए। She is journeying. उसकी यात्रा, वो यात्रा कर रही है, लेकिन हम हमारे खुद के कुछ यात्रा में हैं, कहीं तो भी है, और हम पूरे संसार को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to make a big name in this world, big और इस name. संसार में हम बड़ा नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, But we have not understood our own mother. लेकिन हमारी खुद की माँ को हम समझ नहीं पाए। The day they gave her shock, जिस दिन उनको उन्होंने शॉक दिया, that day I woke up. उस दिन मैं जाग गया। I realized मुझे एहसास हुआ my mom is not okay. मेरी माँ ठीक नहीं है, She is not okay. वो ठीक नहीं है। 3 days I took her for shock. 3 दिन में उन्हें शॉक लेने के लिए लेकर गया And all the 3 days I told her that, he is my friend, he will treat you. और तीनों दिन मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा इलाज करेगा। Yeah, and 3 days she is taking shock and I'm sitting outside and I know what's happening inside. और 3 दिन वो शॉक ले रही, मैं बाहर बैठकर जानता हूँ अंदर क्या हो रहा है। Yeah. And then on the 3rd day she told me, फिर तीसरे दिन उसने मुझसे कहा this doctor is not your friend, ये जो डॉक्टर है तेरा दोस्त नहीं है, तुझे पता है ना, You brought me to give me shock. तूने मुझे लेकर आया शॉक देने के लिए। So I didn't know what to tell her. तो मुझे नहीं पता था मैं क्या कहूँ I उनसे। was 22 years old. मैं 22 साल का था उस समय। I realized that day उस दिन मुझे एहसास हुआ my mother has her own weakness मेरी माँ की खुद की कमजोरियाँ हैं and I have to accept it और मैंने उसे स्वीकार करना है and I have to walk with her. और मैंने मेरी माँ के साथ चलना है। That day I decided, उस दिन मैंने निर्णय लिया, Mom, माँ I accept your weakness. मैं आपकी कमजोरियों को स्वीकारता हूँ। The best thing about Jesus, यीशु के बारे में सबसे उत्तम बात, He accepts our weakness, वो हमारी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, gives us His strength, हमें अपनी ताकत देते हैं and He says, और वो कहते हैं Come, आजा journey with me. मेरे साथ यात्रा कर, I will help you. मैं तेरी मदद करूंगा। So we used to give her medicine. तो हम उन्हें दवाई देते थे। So I understand renewing of mind. तो मैंने समझा मन को नया करने के बारे में। So I used to encourage her, read the Bible, think about the Word of God, think about the Word of God, think about the Word of God. तो मैं उनको उत्साहित करता था, बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचन के बारे में सोचती रहो। But somehow she could not. लेकिन वो कर ही नहीं पा रही थी कैसे तो। Somehow. कैसे तो भी नहीं She'll हो be रहा okay था। for 2 months, 2 महीने ठीक रहती थी, then she'll be out. फिर वापस वैसे हो जाती, Then she'll be okay for 4 months, फिर 4 महीने ठीक हो जाती थी, then she'll be gone. फिर वापस वैसे हो जाती, Then suddenly something happens, she's gone. फिर अचानक से अगर कुछ हो जाए वापस वैसे हो जाती थी। Then I realized, फिर मुझे एहसास हुआ, कुछ भी हो, उसको प्यार देते रहो यार, आमीन, बाकी का चलते रहो. She is my mom. वो मेरी माँ है, She's not my friend, she is my mom. वो मेरी दोस्त नहीं मेरी माँ है। Whatever she is, जो कोई भी वो है I will love her. मैं उनसे प्यार करूंगा। I want to encourage all of you. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Your mothers, आपकी माँ, they have their own weaknesses. उनकी खुद की कमजोरियाँ हैं। Some of your mothers are very physically sick. आप में से कुछ लोगों की माँ शारीरिक रूप में बहुत बीमार है, Yeah, they're very sick. वो बहुत बीमार है And the Lord is watching you. और प्रभु आपको देख रहे हैं। And when your mother goes to the doctor, don't leave her alone, okay? और जब आपकी माँ डॉक्टर के पास जाती है तो अकेले मत जाने दो उन्हें, You should go with her. आपने उनके साथ जाना चाहिए। You're a son, no? आप बेटे हो ना,
Show the whole world, I am her son. पूरे संसार को दिखाओ कि मैं उनका बेटा हूँ। You are her daughter, no? आप उनकी बेटी हो ना। Show the whole world, you are her daughter. पूरे संसार को दिखाओ मैं उनकी बेटी हूँ। Let the hospital people know you love her, you care for her, you are there for her. उन्हें हॉस्पिटल को लोग जाने कि आप उनसे प्यार करते, उनकी परवाह करते और आप उनके लिए हो। I love a verse which Jesus speaks about. मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है जिसके बारे में यीशु कहते हैं, Difficult, कठिन but I love it. लेकिन मुझे अच्छा लगता है। John 15 verse 12. यूहन्ना 15 में 12। You know, it's so simple. John 15 verse 12. यूहन्ना 15 में 12 बहुत आसान है। Jesus said, यीशु ने कहा, love others दूसरों से प्रेम करो as I loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। And who's the best person? और सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है? Your mom. आपकी माँ। I'm not making your mom your God. आपकी माँ को आपका ईश्वर नहीं बना रहा हूँ। I am telling you what your God says to do. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका परमेश्वर क्या कहता है करने के लिए। Come on, I think you should say an amen over मुझे there. ऐसा लगता है आपने आमीन कहना चाहिए था। You're all with me. आप सब मेरे साथ हो। Number 4. चौथा नंबर, I don't know. I've just yesterday, as I was spending time, just the Lord just gave me a lot of thoughts, so I am giving you. कल जैसे मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा था तो प्रभु ने मुझे बहुत सारे विचार दिए तो मैं आपको वो देना चाहता हूँ। Number 4. चौथा, All the special mothers, I call them special. मैं उनको खास माँ कहता हूँ, सारे खास माँ। Why special? क्यों खास? Because maybe you don't have your husband with you, क्योंकि शायद आपके जो पति हैं आपके साथ इस वक्त नहीं है, but लेकिन you are an amazing woman. आप अद्भुत स्त्री रहे हो। Still, you are mothering your child. फिर भी आप एक माँ के जैसे अपने बच्चे का ख्याल रख रहे So हो। I salute you. तो मैं आपको सलाम ठोकता हूँ। We celebrate you. हम आपका उत्सव मनाते हैं। We want to say, Jesus appreciates you and commends you in Jesus' name. हम आपसे कहना चाहते हैं यीशु आपकी सराहना करते और आपके विषय में बात करते हैं यीशु के महान नाम में। Yeah. How many of you know Hagar? आप में से कितने लोग हाजिरा को जानते हो? Yeah. Hagar. हाजिरा। Acha. Who is Hagar? हाजिरा कौन है? Simple. बहुत आसान। There's a famous couple in the Bible. बाइबल में एक मशहूर जोड़ा है। What's their name? उनका नाम क्या है? Abraham. अब्राहम, Sarah. सारा। And Hagar was the slave girl. और हाजिरा जो है दासी लड़की थी। Yeah, of Sarah. सारा की Servant. दासी थी वो। That means no family. इसका अर्थ कोई परिवार नहीं, She's not coming to work and going home. Nothing. वो काम पे आकर घर जा रही है ऐसा भी नहीं। She's brought from Egypt उसे मिस्र से लाया गया है and she's a slave girl. और वो दासी है, गुलाम है। But when Sarah did not have a child, लेकिन जब सारा को बच्चा नहीं हो रहा था yeah, so she said to her husband, तो उसने अपने पति से कहा, she said according to the custom, उसने कहा नियम के अनुसार, नहीं जो रीति रिवाज के अनुसार, yeah, why don't you sleep with this maid of mine and we will have a child through her. क्यों ना तुम मेरी इस दासी के साथ सो जाओ और उसके द्वारा हमारा बच्चा होगा। Yeah. And immediately she was pregnant. और तुरंत ही वो गर्भवती हुई। When she became pregnant, जब वो गर्भवती हुई, Bible says बाइबल कहती है she became proud वो घमंडी हुई and she began to despise her madam. और वो उसकी मालकिन को तुच्छ जानने लगी। Now, was Sarah using her? क्या सारा उसका उपयोग कर रही थी? I don't know. मुझे नहीं पता, Let God judge. प्रभु ही न्याय करे। Okay, when she became proud जब वो घमंडी हुई and she began to despise, और वो अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगी, Sarah told Abraham, please send her back. सारा ने अब्राहम से कहा इसे वापस भेज दे। So Abraham said, no problem. तो अब्राहम ने कहा कोई समस्या नहीं, Let her go. उसे जाने दो। So as she began to do a journey back, I don't know where she was going. तो जैसे वापस लौटने की वो यात्रा कर रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही थी। Yeah, suddenly in the desert she was lost अचानक से मरुस्थल में वो खो गई and she was crying. और वो रो रही थी। You know, life without a husband is very difficult. जीवन बिना पति के बहुत मुश्किल होता है। Nobody is saying an amen because कोई आमीन नहीं कह रहा है most of you have husbands. क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों के पति हैं। Yeah. Life for a widow is very difficult. एक विधवा के लिए जीवन बहुत मुश्किल होता है। Life for a woman who has, you know, her husband is left and gone and there is a child, 2 children, 1 child, very difficult. ऐसे स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसका पति छोड़कर जाता है और 2 या 3 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल होता है। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, You have a heavenly father also. आपके स्वर्गीय पिता भी है।
who thinks about you, जो आपके बारे में सोचते who हैं, loves you, जो आपसे प्यार करते who हैं, will meet you जो आपसे मिलेंगे in your need आपकी जरूरत में and help you. और आपकी मदद करेंगे। If you believe that, यदि आप विश्वास करते हो इस बात I पर, want you to give the Lord a big hand of praise. मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाइए। All the single mothers, सारी जो माएँ जिनके पति नहीं है, अकेले माँ हो आप, all the widows, सारी विधवाएं, God's heart is for you. प्रभु का दिल आपके लिए है। Genesis chapter 16 verse 9. उत्पत्ति 16 में 9। Yeah, let me just say to all the single mothers, all the widows, सारी जो माँ अकेली है और विधवाएं हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। yeah, God will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। To amen. Let me say it again. फिर से कहने दो, God will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। So this woman is walking. तो ये स्त्री चलती जा रही She है, doesn't know what's going to happen. पता नहीं उसको क्या होने वाला है। Angel of God comes. प्रभु के स्वर्गदूत आते हैं, And you know what he says? पता है वो क्या कहते हैं? He talks to her. वो उससे बात करते Yeah, हैं। let me say this. मुझे कहने दो, God will give you direction. प्रभु आपको दिशा देंगे। God will give you direction. प्रभु आपको दिशा देंगे। So what did he say? तो उसने क्या कहा? Go back to her. उसके पास लौट जा, Be her slave. उसकी दासी बनी रहे। Direction is given. दिशा दी गई And one more prophetic word is given. और एक भविष्यवाणी का शब्द दिया गया। So the angel said, तो स्वर्गदूत ने कहा, the child that you are carrying, बच्चा जिसको तू अपने घर में लेकर चल रही है, I will bless him. मैं उसे आशीषित करूंगा, Generations will come out of him. पीढ़ियां उसमें से बाहर आएंगी। Is it true or is it false? क्या सही है या गलत है? Every word which God has spoken, it has come to pass. हर एक शब्द जो प्रभु ने कहा है वो पूरा जरूर हुआ है। So all the mothers तो सारी माओ who are alone doing your mothering work, जो आप अकेली हो और अपने माँ की जो भूमिका निभा रही हो, we are really proud of you. हम आप पर सच में घमंड करते हैं। Your story, I don't know. आपकी कहानी हमें नहीं पता, Whatever is your story, जो भी आपकी कहानी हो, I don't know whether you did right, whether you did wrong, I don't know. मुझे नहीं पता आपने सही किया या गलत किया, मुझे नहीं मालूम। But लेकिन if you are journeying with your child, यदि आपके बच्चे के साथ आप यात्रा कर रहे थे, I promise you, मैं आपको वादा करता हूँ, my God मेरा परमेश्वर will meet you. आपसे मिलेगा, My God मेरा will परमेश्वर direct you. आपको दिशा देगा, My God मेरा will परमेश्वर give your child a prophetic destiny. आपके बच्चे को भविष्यवाणी वाली मंजिल देगा। So as a child, तो बच्चे होने के नाते, yeah, as a son, बेटे होने के नाते, as a daughter, बेटी होने के नाते what should you do? आपने क्या करना है? Let me talk to you. मुझे आपसे बात करने दो। I like this verse. मुझे ये वचन अच्छा लगता है, Beautiful. बहुत सुंदर है। Proverbs 23 नीति वचन 23वां अध्याय and verse 22. वचन 22। Listen to your father. अपने पिता की सुनो, Without him, you will not exist. उनके बिना तुम अस्तित्व में नहीं रहोगे। कभी अपने पापा को बूढ़ा मत बोलो. Never say to your dad, he's an old man. कभी भी अपने पिताजी को ऐसा मत कहो ये बूढ़ा व्यक्ति है। He's not बूढ़ा, तुझे बाहर लाया उसने. वो बूढ़े नहीं है, आपको बाहर लाया उन्होंने। Then it says, फिर आगे कहता है, when your mother is old, जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाती है, show her your appreciation. उसे अपनी सराहना दिखा। So what should I do, pastor? तो मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Learn to appreciate your mother. अपनी माँ को सराहना सीखो। Let me teach you how to do it. मुझे आपको सिखाने दो कैसे करना है। Number 1, पहला, learn to love her verbally. शब्दों के द्वारा उनसे प्रेम करना सीखो। Learn to love your mother verbally. शब्दों के द्वारा अपनी माँ से प्रेम करना सीखो। Do you know when you came out of your mother's womb? आपको पता है जब आपकी माँ के गर्भ से आप बाहर आए, What did your mother say to you? आपकी माँ ने आपसे क्या कहा? You may say I was too small. शायद आप कहोगे मैं बहुत छोटा था, I don't know. मुझे नहीं पता। Okay, you don't know. आपको नहीं पता। Ask somebody who's a mother when they saw their child for the first time, what did they say to their child? किसी माँ से पूछो जब उनका बच्चा पहली बार बाहर आया तो उन्होंने अपने बच्चे को पहले शब्द क्या कहे? क्या कहे? Any mother wants to try? What did you tell your baby? I love you. मैं तुझसे प्यार करती हूँ। That small thing, छोटी सी वो छोटा चीज तेरे हाथ में आया.
You're thinking whether this is fair or this is dark or this is red or blue, what it is. आप सोच रहे हो गोरा है, काला है, नीला है, क्या है? And then you hug the child फिर अपने बच्चे को गले लगाया and you say, और कहा, I love you. मैं तुझसे प्यार करती हूँ। Your mother is the first person who said to you, I love you. आपकी माँ वो पहली व्यक्ति जिसने आपसे कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। कहो, Say something to your mom. अपनी माँ से कुछ तो कहो। नहीं पास्टर जी, मेरे को ना आदत नहीं है आई लव यू बोलने के लिए। ठीक है, आई लव यू मत बोल, कम से कम कुछ अच्छा तो बोल, मुंह में से कुछ बाहर आने दे ना। एंड इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट। और ये अच्छा दिन है इसकी शुरुआत करने के लिए। एंड व्हेन यू से आई लव यू, यू आर स्पीकिंग लाइफ इनटू योर मॉम। और जब आप कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप आपके माँ के जीवन में जीवन बोल रहे हो। Yeah, here it is. Take this verse, Proverbs 18, नीति वचन 18 verse 21. वचन 21। Tongue can bring life. जुबान जीवन ला सकती Put some life in your mom. है। अपनी माँ के अंदर कुछ जीवन डालो। Yeah. When she is depressed, put some life. जब वो निराश होती है तो कुछ जीवन डालो। पास्टर आपको पता नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहती है। ठीक है ना, तो तू भी हमेशा जरा पंप करना यीशु के नाम में। आमीन। Number 2. दूसरा, Yeah. Love her physically. शारीरिक रूप से भी उनसे प्रेम करो। Yeah. What did you do when your eldest one came out? I kissed her. Oh. मैंने उन्हें छुआ। Yeah. Everybody starts over there only. सब लोग वहां से शुरू करते हैं। The child for 9 months enjoys the touch of the mother. बच्चा 9 महीने तक माँ के स्पर्श का आनंद लेता है। 9 months. 9 महीने तक। Then the child comes out. फिर बच्चा बाहर आता है। And when the child is taken, the child comes out of the womb, they cut, then they take the child, whatever, I don't know what all they और do. जब बच्चा बाहर आता है वो काटते हैं वो नाड़ी को और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं। The child is saying, hello, hello, in which environment you have brought me? बच्चा कहता है हेलो हेलो, कौन से वातावरण में ले आए हो मुझे? Where's my mother? मेरी माँ कहाँ है? Put me back into her hands. उसके हाथ में मुझे फिर से रख दो। Doctor, I'll kill you. डॉक्टर, मैं आपको मार डालूंगा। And they put the baby in the mother's hand. फिर से एक बार माँ के हाथ में बच्चे को दे देते हो। And where does the mother put the child? और माँ बच्चे को कहाँ रखती है? On the chest. सीने के ऊपर। Now the child says, wow, perfect landing. अब वो बच्चा कहता है वाह, यहीं पर तो आना था। Affection स्नेह has come from your mom first. आपकी माँ से पहले आपके पास आया है। It's time you give her back something. ये समय आ गया है कि आप उन्हें फिर से लौटाओ कुछ बातें। And by the way, affection is not a weakness. और जो स्नेह है वो कमजोरी नहीं है। Affection is only for people who are healthy. स्नेह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सेहतमंद है। Yeah. If you're a healthy person, you can hug your mother यदि आप सेहतमंद व्यक्ति हो तो आप आपकी माँ को गले लगा सकते हो and tell her, और उनसे कह सकते हो, Mom, माँ, you are actually a heroine for me. तो हकीकत में मेरे लिए हीरोइन है। Number 3, तीसरा, love her patiently. धीरज के साथ उनसे प्रेम करो। Your mother and your father, as they grow, आपके माता पिता जैसे उम्र में बढ़ते हैं yeah, they slow down. वो धीमे हो जाते हैं। So when I say you should love them patiently, that means you have to slow down to love them. तो जब मैं कह रहा हूँ आपने धीरज के साथ उनसे प्रेम करना है, इसका अर्थ आपने धीमा होकर उनसे प्रेम करना है। Yeah. But the problem is what, when we are 30, our mother or father is 60. लेकिन समस्या क्या है पता है? हम जब 30 साल के होते हैं हमारी माँ या पिताजी 60 साल के आसपास होते हैं। Yeah. And we are going, oh, come on, now I'll take the whole world. और हम कहते हैं मैं पूरे संसार को लेकर जाऊंगा। No, just chillax. The strength of 30 years age, chillax. 30 साल की जो ताकत है थोड़ा धीमे हो जाओ। Yeah, you have to chillax. आपने थोड़ा धीमे होना है। Yeah, because you have to love your mother patiently. क्योंकि धीरज के साथ आपके माँ से आपने प्यार करना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आमीन। Galatians 5:22. गलातियों 5:22। Yeah. What is patient? धीरज क्या है? Yeah.
Yeah, fruit of the spirit, but आत्मा का फल है, लेकिन it is not just about waiting. लेकिन सिर्फ रुकने के बारे में नहीं, But in the waiting, you should have some action. लेकिन रुकने में आपने कुछ कार्य भी करना है. मैंने बोल रहा हेलो हेलो हेलो. In the waiting, there is action. रुकने में कार्य होता है. Yeah. Okay. See, when they slow down, no, जब वो धीमे हो जाते हैं ना, their body slows down, उनका शरीर धीमा हो जाता है. and then their mind also sometimes slows down. फिर कभी कभी उनका मन भी धीमा हो जाता है. Yeah. My dad, मेरे पिताजी 2 o'clock one day. एक बार एक समय पर 2 बजे 2 बजे रात को the bell rings. बेल बजती है. So I'm thinking 2 o'clock, who came, which believer, which sheep has come to my house today? तो मैं सोचने लगा कौन सा विश्वासी, कौन सी भेड़ आई मेरे घर पे आज. So I go and open the door, तो मैं जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, and my dad is outside. और मेरे पिताजी बाहर हैं. I'm thinking, मैं सोच रहा हूँ, you were sleeping. आप तो सो रहे थे, Now what are you doing outside? अभी आप बाहर क्या कर रहे हो. So I got worried. तो मैं चिंतित हो गया. So we took him to doctor. तो डॉक्टर के पास लेकर गए. So they told me, तो उन्होंने मुझसे कहा because of his diabetes, उनके डायबिटीज के कारण he's losing his memory. वो अपनी याददाश्त धीरे धीरे खो रहे हैं. ये सब reality है. वास्तविकता है ये सब. This is all real. ये सब वास्तविक है. Do you have a mom who, when she is talking, she will wait for 2 minutes, she'll forget, and then she'll say, हाँ, अभी मुझे याद आया, अभी मुझे याद आया. क्या आपकी मम्मी ऐसी है, आपसे बात करते करते 2 मिनट रुक जाएगी, भूल जाएगी, फिर वापस कहेगी अभी याद आया. हाँ, अभी याद आया, अभी याद आया. हाँ. Praise God, welcome. प्रभु की स्तुति हो, आपका स्वागत है. धीरे चलो, धीरे चलो. मम्मी पापाओं के साथ थोड़ा धीरे चलो. Amen. हाँ. क्योंकि जो बो रहे हो ना, वही तुम काटने वाले हो. Yes. What you sow, you're going to reap. जो आप बोओगे वही काटोगे भी. और याद में रखना, मरने के बाद मम्मी के अस्थि के ऊपर रोना मत, और उस दिन खड़ा रह के बड़ा भाषण मत दो. उसके मृत्यु के पहले उसको थोड़ा प्यार दो, सम्मान दो, आदर दो, यीशु मसीहा के नाम में. Amen. Come on, I think you should give the Lord a big hand of praise. मुझे ऐसा लगता है प्रभु के लिए आपने जोरदार शुक्र डाला है. Oh, he is worthy. He is वो worthy. योग्य है. Number 4, चौथा नंबर, love them faithfully. विश्वास योग्यता से उनसे प्यार करो. Love them faithfully. विश्वास योग्यता के साथ उनसे प्यार करो. This verse is my favorite. Psalm 71 verse 9. भजन संहिता 71 में मेरा पसंदीदा वचन है. This is David speaking. ये दाऊद बात कर रहा है. Now in my old age, अभी मेरे बुढ़ापे में don't put me aside. मुझे बाजू में मत रख देना. प्रभु से मांग रहा है, प्रभु मुझे साइड में मत रखना. And then he says, don't abandon me when my strength is failing. फिर वो कहता है मेरी ताकत जब कम हो रही है मुझे त्याग मत देना. 2 things happen when a person becomes old. जब एक व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो 2 चीजें होती है. 1, पहला, strength is going down. ताकत कम होती जाती है. 2, दूसरा, loneliness comes. अकेलापन आता है. My father died first, मेरे पिताजी पहले गुजरे, and after I think nearly 6 months is too. In 4 months, और 4 महीने में ही my mother also died मेरी माँ का भी देहांत हो गया. because she could not take that loneliness. क्योंकि वो अकेलेपन का दबाव ले नहीं पाई. Life is very real. जीवन बहुत वास्तविक है. मुझे क्या बोलना है ना, जब तुम्हारे मम्मी पापा आखिरी सांस जब ले रहे हैं ना, वो कुछ बोलते हैं. They say something. वो कुछ कहते हैं. I pray they will say, मैं प्रार्थना करता हूँ वो कहेंगे may it go well with you. तेरे साथ भला हो. May your parents say that may it go well with you. होने दो आपके माता पिता कहे तेरा भला हो. Yeah. We were in a hospital. हम हॉस्पिटल में थे. Pastor Tejal's mom was admitted. पास्टर तेजल की मम्मी एडमिट किया गया था उन्हें. And next to her, और उनके बाजू में another lady, mother was admitted. और एक माँ वहाँ पर एडमिट की गई थी. Money was coming, पैसा आ रहा था but love was not there. लेकिन प्रेम नहीं था. You understanding what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या. Money is coming, प्रेम पैसा तो आ रहा है but person is not there. लेकिन कोई व्यक्ति ही नहीं है.
Do you know what your mother and father needs? आपको पता है आपके माँ और पिताजी को क्या चाहिए? You. आप चाहिए। Okay. Have you ever been lost when you were a child? क्या आप जब बच्चे थे आप कभी खो गए थे? Huh? How was the feeling? कैसे आपको लग रहा था उस समय? अकेला, डर, डर, क्या होगा? That's what happens to your parents. आपके माता पिता के साथ भी वही होता है। When they are all alone, जब वो अकेले ही रहते हैं, no phone from you, आपके पास से कोई फोन नहीं जाता, no visit. कोई मिलने नहीं जाते। Now you're CEO. अभी आप CEO हो, You have 10,000 people under you, आपके हाथ के नीचे 10,000 लोग हैं, but she has nobody. लेकिन उसके पास तो कोई भी नहीं है। You have become big, आप बहुत बड़े हो गए हो, so big इतने बड़े हो गए that your mother has to be alone. कि आपकी माँ को अकेला रहना पड़ रहा है। Show the whole world now how to love and honor your mother. Show the whole world. I challenge you today in the name of Jesus. पूरे संसार को दिखाओ ना कैसे आपका माँ का आदर करना, उनसे प्यार करना। मैं आपको चुनौती देता हूँ यीशु के I नाम में। challenge you this morning. Show the world how to honor your mother. मैं इस सुबह आपको चुनौती देता हूँ, संसार को दिखाओ आपकी माँ को आदर और प्रेम कैसे देना है। Yeah, I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ। Did I fail? Yeah, I failed. क्या मैं असफल हुआ? हाँ हुआ, In a lot of places. But बहुत सारे क्षेत्रों में। as God kept talking to me, I just kept going. लेकिन जैसे प्रभु मुझसे बात करते रहे, मैं आगे बढ़ता रहा। Yeah. Number, I don't know. What is the number? Number 5, love her generously. 5वां, उदारता से उनसे प्यार करो। Yeah. That means spend money on her. इसका मतलब उनके ऊपर पैसे खर्च करो। Oh, nobody said an amen over here. I don't know. What did you do to celebrate her today? आपने उनका उत्सव मनाने के लिए आज क्या किया मुझे नहीं पता। Yeah, I know. Maybe you come from a family where you don't celebrate. शायद आप ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पर कोई जश्न नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना? From now onwards, make this day a special day for your mom and do something where she will feel celebrated, honored in the mighty name of Jesus. तो मैंने तो क्यों ना आज के दिन आप उसकी शुरुआत करो और आपकी माँ का जब जैसे आप जश्न मनाओगे उनको प्रेम और आदर महसूस हो यीशु के नाम में। Yeah. 1 Timothy 5:4. पहला तिमोथी 5:4। Yeah. Okay. If any widow has a child or a grandchild, यदि किसी विधवा का बच्चा है या नाती पोता है, let them first मैंने तो उन्हें पहले learn to show love at their home. उन्हें अपने घर में पहले प्रेम दिखाना सीखने दो। You know, some of our problem is we show love to our friend's mother. हमारी समस्या क्या है पता है? हमारे दोस्त के माँ को प्रेम हम दिखाते हैं। हम दोस्त के मम्मी के बर्थडे पे गिफ्ट लेके जाता है, लेकिन मेरे मम्मी को मैं कभी गिफ्ट ही नहीं देता हूँ। और अगर मेरी गर्लफ्रेंड होंगी ना, उसके मम्मी को तो और गिफ्ट देते हैं हम। मार खाएगा तू मेरे पास से। No, pastor, she is very special पास्टर वो बहुत खास है because she is the mother of the one who I love. क्योंकि वो ऐसी किसी की माँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, उसने तुझे गर्भ में रखा क्या? Stop loving other mothers. First start loving your mother. Then दूसरी माँ से प्यार करना पहले बंद करो, पहले अपनी माँ से प्यार करना शुरू करो, उसके बाद दूसरी माँ से प्यार करो। And that is important. Repay your parents. अपने माता पिता को फिर से चुकाओ। प्यार से नहीं देते आता ना, तुझे प्यार नहीं है ना मम्मी पापा पे, तो प्रभु बोल रहा है इधर आ रहा है बेटा। अच्छा, आज से ना मैं तेरे पे जितना खर्चा होने वाला सब मैं लिख के रखने वाला हूँ और बाद में सब पे करने का। ओके ओके। कोशिश भी करोगे ना, नहीं होने वाला है। कोशिश भी करोगे नहीं होगा। Learn to be generous givers to your parents in Jesus name. अपने माता पिता के लिए उदारता से देने वाले बच्चे बनो यीशु के नाम में। Yeah. Love your mother honorably. आदर के साथ अपनी मम्मी से प्रेम करो। Yeah. Thank you for your amen. Okay.
So, especially I want to tell you, how you treat your mother in front of others is very important. खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे लोगों के सामने आपके माँ के साथ आप कैसे बर्ताव करते हो बहुत महत्व का है। Yeah, very important. बहुत महत्व का है। Your mother may not be educated. आपकी माँ शायद पढ़ी लिखी नहीं होगी। Yeah, when my mother used to talk in Hindi, na, all her Tamil will come out. जब मेरी माँ हिंदी में बात करती थी ना साथ ही साथ उनका पूरा तमिल बाहर आ जाता था। And when she speaks in Marathi, it is as if she is speaking in tongues. जब वो मराठी में बात करती है तो मान लो अन्य भाषा में बातें कर रही है। So when she is talking to people, na, I will tell her, Mom, it's okay, तो जब वो लोगों से बात करती थी ना कहता था मम्मी ठीक है मत बोलो, it's okay, it's okay, ठीक है it's okay. ठीक है। How you treat your mom in front of people is very important. लोगों के सामने आपके माँ के साथ आप कैसे बर्ताव करते हो बहुत महत्व। Last verse. आखिरी वचन। See how King Solomon treated his mother in front of other people. देखो राजा सुलेमान ने दूसरे लोगों के सामने अपने माता के साथ कैसे बर्ताव किया। First Kings chapter 2 verse 19. पहला राजा 2:19। So Bathsheba is his mother. बत्शेबा उसकी मम्मी है। Okay. So Bathsheba goes to meet him. बत्शेबा उससे मिलने जाती है। He's a king. वो राजा है। She enters the court. वो आंगन में आती है। As soon as she enters the court of the palace, जैसे महल के आंगन में आती है the king stands up. राजा उठ के खड़ा होता है। अच्छा, anybody over here more richer than Solomon? क्या कोई यहाँ पर है ऐसा जो सुलेमान से ज्यादा अमीर है? Anybody over here more wiser than Solomon? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान है? Anybody over here who has got more writings than Solomon? क्या कोई ऐसा यहाँ पर है जो सुलेमान से ज्यादा लिखा है आपने? He is teaching us something. वो हमें कुछ सिखा रहा है। His ministers are sitting. उसके जो सारे अधिकारी लोग बैठे हैं। Mother is coming. माँ आ रही है। Stands up. खड़ा होता है। As she comes near, जैसे वो करीब आती है he bows before her. उसके सामने झुकता है। That's called उसे कहते हैं loving with honor. आदर के साथ प्रेम करना। My unbeliever friends tell me, you Christians, you don't know how to respect your mother and father. मेरे अविश्वासी दोस्त लोग मुझसे कहते हैं तुम विश्वासी लोग जो है ना मसीही लोग तुम्हें पता नहीं तुम्हारे माता पिता का कैसे आदर करना है। Because they tell me, क्योंकि वो मुझसे कहते when हैं an elderly man comes, you people, you sit with your, पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते हो. क्योंकि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके सामने आता है तो तुम लोग जो है पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते हो उनके सामने। मैंने बोला ऐसा नहीं है. मैंने कहा ऐसा नहीं, जो करता है वो उसका संसार है. मेरा जो परमेश्वर का संस्कृति है ना वहां पर ऐसा है. बुजुर्ग जब अंदर आता है ना जवान लोग उठते हैं. ये मेरा प्रभु का संस्कृति. तो So what he did? तो उसने क्या किया? Yeah, he bowed, वो झुका, sat down, बैठा, called a chair, special chair, उनके लिए खास कुर्सी मंगाई, made her sit. बिठाया। Everybody's watching सब लोग देख रहे हैं and they are talking. और वो बात कर रहे हैं। What they spoke, I will not talk about it, but they were talking. उन्होंने क्या बात की वो नहीं बताऊंगा लेकिन बात की उन्होंने। Everybody's watching. सब लोग देख रहे हैं। Now he is an example. अब ये उदाहरण है। Can I ask you? आपसे कुछ पूछूं? When will you become an example कब आप उदाहरण बनोगे for people in this world? इस संसार के लोगों के लिए? I pray, मैं प्रार्थना करता let हूँ God's culture होने दो प्रभु की संस्कृति come in your family. आपके परिवारों में आए। May you love your mother. होने दो आपके माँ से आप प्यार May करो। you celebrate your mother. होने दो आपके माँ का आप उत्सव मनाओ। May when people see you, होने दो जब लोग आपको देखें they should say, उन्होंने कहना चाहिए truly, सच में the God that you serve जिस परमेश्वर की तुम सेवा करते हो is worthy to be worshipped. वो आराधना के योग्य है।